very good morning to one and all present here. I, Priyesha Yadav, would like to take this opportunity to extend a very warm welcome and a hearty welcome for today's seminar. As it is said that big thing often starts with a small beginnings. Our today's seminar is on prototype, how to convert a prototype into a startup. Organized by ETC department associated with Institute Innovation Council. I would like to request Praveen Pardi sir to welcome Mr. Sandeep Sonkar. Thank you, sir. We have an eminent speaker, Mr. Sandeep Sonaskar. Sir is a managing director at VS Informative Private Limited, Nagpur since 2013. Sir is also working with INUC Education Private Limited from January 2021 as a consultant. Sir is also working as a faculty at RTMNU Robotics Department. Sir has completed his BTech from RTMNU in 2006. Sir has learned his Masters from GH Raisoni in 2011. Sir has published 6 journals and 2 conferences. Sir has 5 years experience in GH Raisoni as an assistant professor as an undergraduate candidate in Department of Electronics and Telecommunication Engineering. Sir has startup plans as solar power business development, entrepreneurship and innovation in telecom and many more. Now I would request sir to please enhance us on today's seminar. So thank you very much, ma'am, sir. I'm good to hear that what exactly we are going to tell you that from the project to the product development. So this is basically related with your startup business. If you have a plan with you, then how we are going to convert that project into the product. So apart from the job is concerned, this particular session is related with if you are going to have your own business, how you are going to start it, what will be the profit, what will be the loss, and what are the strategies. So these are going to explain today by me. I am Sandeep Sonaskar, Managing Director, VS Informatics. Welcome you to this seminar.
and I hope you got some idea and you get some idea related that if you have a spark to be a startup. तो बिजनेस स्टार्टअप एक वर्ड होता है, हम स्टार्टअप जो बोलते हैं एक एज एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का हम लोग सोचते हैं कि हमें कुछ बनाना है, बिजनेस करना है. सो बिजनेस करना है इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, क्या करना पड़ता है इसमें फ्रॉम योर साइड? यस, टू सेल द प्रोडक्ट्स. ओके, और का प्रॉफिट बनाना. प्रॉफिट बनाना, बिजनेस है तो प्रॉफिट की बात आएगी, करेक्ट है. और बिजनेस हम लोग एक जो वर्ड देखते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, ठीक है. अब इसमें किस टाइप का बिजनेस करना है, कौन से कैटेगरी में करना है, इसके बारे में कुछ आइडिया आपको? जैसे आप अभी इन्होंने कहा है कि हमें प्रोडक्ट को सेल करना है, ये एक टाइप का बिजनेस हो गया. और हाँ, सर्विस प्रोवाइडर, राइट, consultancy business. So there are a lot of business parts and business paths available. अब जैसे आपने कहा प्रॉफिट के बारे में, अब प्रॉफिट ही कमाना है इसलिए हम लोगों को बिजनेस करना है, तो एग्जैक्टली हमें क्यों कमाना है प्रॉफिट और किस तरह से? हमारे दिमाग में दो चीज़ें होती है कि ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं, हमें एक अच्छा पैकेज का जॉब मिल जाएगा, विल अर्न सम मनी 2.4 to 5 lakh and 6 lakh and we'll have a very good life. Similarly, for business point of view, we also think about the profit and we are going to think about कि 1 लाख मुझे 1 साल मुझे इतना कमाई करना है ना. So basically, business is related with first of the profit making, that is freedom from the limit of standardized pay, independence. आप अपना इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बॉदरेशन पे काम नहीं कर रहे हो. देयर इज अ बॉदरेशन एंड लिमिटेशंस. एंड सेटिस्फाइड वे ऑफ लाइफ मीन्स हम जो काम कर रहे हैं दैट इज आवर वर्क एंड दैट आई एम सेटिस्फाइड विद दैट. आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे कि 15 लाख 20 लाख के पैकेज वाले भी लोग जॉब छोड़ के जाते हैं क्योंकि उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है. पैसा बहुत को मिलता है बट दे आर अवेयर कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है काम करने, उसको भी अलग करना है, जॉब छोड़ देते हैं, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज अ सेटिस्फैक्शन. इनिशियली बहुत खुशी होती है, हमें 10 लाख का पैकेज मिल गया. जब हम काम करते हैं तब पता चलता है कि वेदर दैट वर्क इज रिलेटेड टू माई फील्ड और नॉट, और रिलेटेड टू माई इंटरेस्ट और नॉट. देन बिजनेस ओनरशिप, इसमें आता है अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम. मतलब कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो, आपके पास रेगुलर इनकम नहीं है, आपके पास एक सीजन रहता है उस पर्टिकुलर बिजनेस का. सपोज आप एक प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं एंड दैट प्रोडक्ट इज रिलेटेड विद सम टेक्नोलॉजी. तो वो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल सिर्फ त्योहारों के दिनों में ही काम होते, जैसे दिवाली हो गया या फिर और कुछ हो गया. तो आपका जो बिजनेस सेल होगा ये पर्टिकुलरली उस 3 महीने में ही होगा, राइट. अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने का एक बिजनेस का टाइम होता है कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने का. तो अगर आपके पास अनसर्टेनिटी होती है इनकम की, तो आपको सबसे पहले करना पड़ता है बिजनेस प्लान और कंप्लीट ईयर. जैसे हमें पैकेज मिलता है, जैसे मान लीजिए आपको 10 लाख का पैकेज मिला, आप जॉब कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अर्निंग 10 lakh फ्रॉम दैट कंपनी, फ्रॉम योर साइड दैट कंपनी इज अर्निंग अराउंड 1 crore. तब जाके आपको 10 लाख मिल रहा है, मतलब 90 लाख को वो प्रॉफिट कमा रहे. कोई भी कंपनी आपको अगर एम्प्लॉय बना रही है, आपको एक सैलरी दे रही है, दैट मीन्स फ्रॉम देयर प्रॉफिट दे आर गिविंग यू सम मनी, राइट. सो इफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इज अर्निंग 1 crore rupees and that will appoint you as a 10 lakh of the means you are having the ability to earn 1 crore per annum. 10%. कोई भी कंपनी आपको जो देती है या तो 1% 2% के इसके हिसाब से सैलरी पैकेज ऑफर. देन रिस्क ऑफ लूजिंग द एंटायर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग आवर्स वर्क, लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ पर्टिकुलर बिजनेस गेट एस्टैब्लिश्ड एंड कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक बिजनेस ओनरशिप के लिए मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके पास उसकी एक टीम होती है, उस टीम को उसको मैनेज करना है, उस टीम को उसको सैलरी भी देनी है और उस टीम से वो काम भी करवा के लेना है ताकि उसको वो 1 crore का हर साल का प्रॉफिट मिले. ठीक है. देन
क्या होता है, एक हम लोग स्टार्टअप बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए क्या एक्चुअली होना चाहिए, दैट यू मस्ट हैव पैशन, परसिस्टेंस, हाई रेट ऑफ अचीवमेंट, विलिंगनेस टू टेक मेजर रिस्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाई एनर्जी लेवल एंड डिजायर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बेसिक पार्ट्स, मतलब ज्ञान की बातें आप में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली जब हम करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमको आता है नहीं। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं माहेश्वरी के लेक्चर सुन के या सारी चीज़ें ऑनलाइन हम लोग इंप्रेस हो रहे हैं, देख रहे हैं यूट्यूब पे फलाना चीज़ें मिल रही है, वो गाइड कर रहा है, ये गाइड कर रहा है, हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब हम एक्चुअली वो वर्क करने जाते हैं, क्या सही में वो वर्क आपकी एबल है, आप कर सकते हो, दैट्स द मेक सेंस। तो अगर बिजनेस करना है आपको, तो आप सबसे पहले एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस, ये दो ही चीज़ों में काम होता है। प्रोडक्ट में आता है आपका, या तो आप किसी का प्रोडक्ट का फ्रेंचाइजी लेके उसको सेल करो, या तो आपका प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर। सर्विस में आता है जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसका आप सर्विस सेंटर शुरू कर सकते हो, उसका सर्विसिंग ले सकते हो, या फिर आप ऑलरेडी टिके हुए प्रोडक्ट का सर्विस ले सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू हैव अ बिजनेस इन दिस कैटेगरीज। अब बिजनेस ओनरशिप का किस तरह से होता है, मतलब क्या कर सकते हैं बिजनेस के लिए। एक तो स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप मतलब हम जस्ट इनिशियल फंडिंग लेके स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका बायआउट, मतलब किसी का ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, वो लॉस में गया है, या फिर उसको नहीं चल रहा है, आप उसको खरीद रहे हो या उसकी ओनरशिप आप ले रहे हो। तीसरा आता है फ्रेंचाइजी, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, किसी भी एक बड़े ब्रांड का आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप उनका फ्रेंचाइजी ले सकते हो। या तो होता है फिर फैमिली बिजनेस, जो ऑलरेडी चलते आ रहा है, हम उसको आगे बढ़ाएं। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को लेना है, ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। बेसिकली आप करते क्या, खरीदते हैं किसी का बिजनेस, मतलब यू आर गोइंग टू बी एन इन्वेस्टर, है ना। वो शो देखा है ना, हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ठीक है, हमको 1% मिलता है शार्क टैंक में। तो व्हाट दे एक्चुअली डू, वो पैसा लगा के, इसका मतलब वो चीज़ खरीद नहीं रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, और मैनेजमेंट का पावर जो रहता है फिर उनके हाथ में। तो अगर ऐसा करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, अगर एडवांटेजेस देखा जाए तो हाई रेट ऑफ सक्सेस होता है, लेस प्लानिंग, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपको मिल रहे हैं, इक्विपमेंट है, आपके पास प्राइस लिस्ट होती है, आपके पास एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज होते हैं, और सारे के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। मतलब कि आपके पास पूरा प्लान ऑलरेडी रेडी होता है, बस आपको आपके हिसाब से एक बार इन्वेस्टमेंट करके उसको एग्जीक्यूट करवाना है, राइट। तो शार्क टैंक में भी वही होता है, बिजनेस उनके पास रहता है लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि आप पैसा डालते हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस को आपको परचेज करना है, दैट मीन्स यू विल बी द शेयर होल्डर ऑफ दैट। डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर मान लीजिए उसमें एम्प्लॉयज है लेकिन वो बराबर तरीके से काम नहीं कर रहे, स्टार्टिंग में तो बहुत बोला था इसने यार ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा, लेकिन जब एक्चुअल कर रहे हैं तो वो हो नहीं रहा, सेल नहीं हो पा रही है, बिजनेस स्ट्रैटेजीज बराबर तरीके से नहीं हो पा रही है, तो ये एक रिस्क फैक्टर भी होता है, राइट। अगर फ्रेंचाइजी लेंगे तो क्या होगा, मतलब क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। इसमें एडवांटेजेस है कि आपको एक जिस कंपनी का फ्रेंचाइजी ले रहे हो वो कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है फॉर सेल्स, फॉर प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड फॉर प्रोडक्ट सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस। उसके बाद आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता है। मान लीजिए फ्रेंचाइजी आपको देना, आपको 10 लाख रुपीज़ देकर आपने फ्रेंचाइजी ली, बट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू टेक दैट फ्रेंचाइजी बट यू डोंट हैव मनी, सो एट दैट पॉइंट दैट फ्रेंचाइजी, आप जिस कंपनी का फ्रेंचाइजी ले रहे हो वो आपको फंडिंग के लिए भी रास्ते देते हैं। वो आपको जैसे बिजनेस लोन देना है, बिजनेस लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें आप गवर्नमेंट के थ्रू 15 लाख तक के आप बिजनेस के लिए लोन ले सकते हो, और ये सारे कॉलेजेस में होता है। शायद MSME का आपके साथ टाइप होगा, सो MSME का टाइप होता है सारे कॉलेज के साथ। अगर आपके पास आइडिया है, आपको बिजनेस करना है, तो इनिशियल 15 लाख रुपीज़ फंडिंग इज गिवन बाय दी गवर्नमेंट। पर आपका होगा कैसा कि यही कॉलेज में आपको उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और यहीं से उसका बिजनेस करना है। 1 साल तक वो बिजनेस का टर्नओवर देखते हैं आपका, अगर बिजनेस अच्छे तरीके से चल रहा है तो आपको 15 लाख रुपीज़ वापस करने की जरूरत नहीं, वो आपके होगा पूरे बिजनेस में। लेकिन अगर उसमें कुछ कम ज़्यादा हो जाता है तो समथिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको फिर उनको पैसा रिटर्न करना है। तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप यहाँ पे आपका ISA सेल होगा, उससे आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझाते हैं फ्रेंचाइजी के लिए। उसके बाद आपका अगर जस्ट एक स्टार्टअप ही है तो आप
ग्रो करने के लिए कम से कम टाइम में आप ग्रो कर सकते हो अगर आपने फ्रेंचाइजी ली तो। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो फ्रेंचाइजी की जो फी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा पतंजलि के बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, उसका कितना है फ्रेंचाइजी? कम से कम 1 लाख होता अराउंड 25 lakhs। देन दूसरा आता है आपका हल्दीराम, उसका फ्रेंचाइजी वो भी अराउंड 50 लाख 60 लाख तक की फ्रेंचाइजी फी। वो फ्रेंचाइजी फी में एक्चुअली करते क्या है, वो पूरा सेटअप आपको बना के देते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रेंचाइजी लेने के बाद बाकी का खर्चा हमें करना है, नहीं। जगह आपकी रहेगी, टीम आपकी रहेगी, मैनेजमेंट आपका रहेगा। आप हमें 50 लाख रुपए दो, हम आपको पूरा सेटअप करके देंगे, आपको उसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, आपके एम्प्लॉयज़ एंड स्टाफ सबको। वो होता है फ्रेंचाइजी। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि एक तो पैसा ज़्यादा आता है, दूसरी बात होती है ग्रोथ, रिस्ट्रिक्शंस होता है। फ्रेंचाइजी में आप ऐसा है कि आपने मान लीजिए हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ले लिया, आपको पता है कि अभी प्रोडक्ट मिठाइयाँ कैसे बनाना, कैसे बेचना, क्या करना, आप अपना दूसरा सेम बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते। उसी के बगल में आपने बोल दिया, जैसे होता है ना, एक पानी पूरी वाला का ठेला है तो 10 ठेले अपने आप लग जाएंगे, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन फ्रेंचाइजी में रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप सिमिलर बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते। फैमिली बिजनेस अगर है तो बेस्ट है, फैमिली बिजनेस को आप मैनेज कर सकते हो, उसको और ग्रो कर सकते हो। आप टेक्निकल पर्सन हो, अगर आपके पास फैमिली बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आज फार्म है सबके यहाँ पे, मैक्सिमम लोग यहाँ पे, कितने लोग यहाँ पे फार्म है? ग्रेट। तो आपका जो फार्मिंग का जो है वो भी एक बिजनेस ही, आपको पता है कि किस तरह से आता है, किस तरह से उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आप अपना टेक्निकल नॉलेज उस पर्टिकुलर बिजनेस में डालते हो और आप ऐसा कुछ सोल्यूशन निकालते हो कि जो ग्रोथ का टाइम अगर 6 महीना 7 महीना लग रहा है वो 2 से 3 महीने में हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हो, तो दैट्स कम अंडर योर फैमिली बिजनेस। अब होता कैसा है कि आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है, बिजनेस प्लान्स हम जिसको बोलते हैं। तो ये बिजनेस प्लान बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो बिजनेस प्लान के लिए कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड एनर्जी। दूसरा आता है आपका बजट कितना है, आपके पार्टनर्स आप कितने ले रहे हो, उसके साथ में आपका जो भी इसके रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा, या फिर अगर आपको नहीं पता है कि अभी हमको ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये सारी चीज़ों का पहले आपको ऑन पेपर एक वर्कआउट प्लान डिजाइन करना होगा। तो ये बिजनेस प्लान के कुछ की पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना होगा, बिकॉज इट्स, एक तो आप खुद इन्वेस्टर हो, फैमिली आपका इन्वेस्ट कर रही है, या तो फिर आप किसी को बोल रहे हैं कि मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। तो इसका मतलब आपके पास जो बिजनेस प्लान होना चाहिए वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। देन आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस आइडिया जो है ये अगर उसके रिलेटेड प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है तो उनके कॉम्पिटिशन में आपका प्रोडक्ट सुपेरियर क्यों है, किस तरह से आप सर्विस देना चाहते हो, क्या सर्विस वो दे रहे हैं जो वो दे रहे हैं और आपके सर्विस में फ़र्क क्या है, कॉस्टिंग में फ़र्क क्या है। तो आपने देखा ही होगा ना, जैसे बोट एग्जाम्पल है, म्यूजिक सिस्टम्स, ऑलरेडी म्यूजिक सिस्टम्स बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन उसी ने किस तरह से किया, क्योंकि उन्होंने बिजनेस प्लान जो स्टार्ट किया था वो पूरा ऑनलाइन से किया। टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उन्हें पूरा का पूरा ऑनलाइन मार्केट कैप्चर करवा के इनिशियली बहुत लो कॉस्ट में, डिस्काउंट रेट में उनको दिया। कस्टमर्स पहले उसको व्यू किया, पसंद आया, रिव्यू से एक ने बोला यार बहुत सही पूरी खरीद, उस बेसिस पे उनका चेंज करना है। इसलिए जो भी प्रोडक्ट आप डिज़ाइन कर रहे हो, आपके पास आइडिया है, तो इनिशियल लेवल पे आपके कुछ सैम्पल कॉपीज आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके लॉस में खेलना पड़ता है पहले 5-6 महीने। स्टार्टिंग में आपको लॉस में इसलिए खेलना होता है कि जब तक लोगों तक आपका ब्रांड पहुंचता है, आपको पता लग जाता है उनको कि हाँ ऐसा कोई ब्रांड है मार्केट में जो काम कर रहा है, उसके बाद फिर वो ग्रोथ शुरू करता है। देन आउटलाइन ईच एरिया ऑफ बिजनेस। अब आपका जो पर्टिकुलरली बिजनेस है इसके लिए आपको प्लानिंग किस तरह से करना होगा, मतलब आपका टारगेट कस्टमर कौन है, उसके लिए आपको स्ट्रेटेजीज क्या बनानी होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू स्टार्ट एन इंस्टीट्यूट, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, ये भी एक बिजनेस है। तो आपका टारगेट कस्टमर कौन है। सपोज आप सोचते हो कि मुझे 10th के क्लासेस चालू है, अब 10th के स्टूडेंट आपका टारगेट कस्टमर है, लेकिन आप जिस एरिया में उसको स्टार्ट करना चाहते हो, क्या ऑलरेडी वहाँ पे और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर होंगे तो वहाँ पे शुरू करने के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होगी। एक तो आप सबसे पहले स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे, सबको जाके पूछेंगे कि फीस कितनी, क्या है, कैसे काम करता है, उससे कम इसमें और ज़्यादा सर्विस में आप स्टार्ट कर सकते हो।
ऐसा ही होता है ना। सपोज एक प्रोडक्ट हमें मार्केट में 10 रुपये में मिल रहा है, मुझे वही प्रोडक्ट बनाना है तो मैं उसको 8 रुपये में बेचूंगा। सपोज एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन किसी डीलर को सिर्फ 10% मिल रहा है, उसी तरीके का दूसरा मेरा जो प्रोडक्ट रहेगा मैं प्रॉफिट मार्जिन 20% मिलूंगा। तो आपको आप एज अ मैन्युफैक्चरर अगर हो तो आपको बल्क क्वांटिटी में खेलना पड़ेगा। आप अगर डीलर हो, आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आपको किसी और के प्रोडक्ट लेके बेच के सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन कमाना है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क जो होता है मार्केट में वो होता है मैन्युफैक्चरर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर आपको सिर्फ 1, 2 या 10, 15 क्वांटिटी में नहीं देता है, वो डायरेक्टली 1000 क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी बोलता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहता है, छोटा सा प्रॉफिट। जब वो मार्केट में जाता है उसके साथ साथ टैक्सेस लगते हैं, उसके साथ साथ जब डीलर का शेयर आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर आएगा, देन इट गोज टू द कस्टमर है। इसीलिए ये जो ऑनलाइन पोर्टल जो मार्केटिंग किया हुआ है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, ये कंसेप्ट आया है, पता है आपको? B2C, दैट इज द कम्प्लीटली आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो और डायरेक्ट जा रहा है कस्टमर के पास। तो बीच वाली जो कड़ी है वो कट जाएगी, जिस वजह से पैसा कम होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारी कंपनीज है जो डायरेक्टली नहीं बेचती। आप मैन्युफैक्चरर हो लेकिन आप डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेच रहे। ऐसी बहुत कंपनीज हैं, इसमें से पार्ले कंपनी है, उन्होंने ये पार्ट आप देखोगे ऑनलाइन नहीं बिकता उनका, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उनके मार्केट के डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स इस तरह से बना के रखे हुए हैं, जिसके वजह से वो लोग ऑलरेडी उसी के पीछे से काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो एक फेक पूरे इंडिया में जनरेट किया हुआ है। अगर वो छोड़ देते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड हैं। तो ये भी सोच रखनी पड़ती है। देन सेटअप योर माइलस्टोन्स, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? दिक्कतें आपको आएंगे सबसे पहले तो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, या एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। दूसरा आता है आपका पैसा, आप लगाते जा रहे हो, सैलरी देते जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो, लेकिन प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा। ठीक है। तीसरा आ रहा है जो प्रोडक्ट आप बना चुके हो उसी के कंपटीशन में और 10 लोग खड़े हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही प्रेडिक्ट करनी पड़ती है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है। इफ एल्स कंडीशन वाला पूरा एल्गोरिथम आपको पहले ही दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है। तो आपको पूरा फ्लोचार्ट आपको बनाना होता है कि हाँ इतना पैसा आया, ये कितने प्रोडक्ट बने, फिर कितने प्रोडक्ट कितने दिनों में बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं। तो अब अगर बिजनेस प्लान बनाना है तो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले आता है ओवरव्यू, क्या बिजनेस है। दूसरा आता है आपका मार्केटिंग प्लान, किस तरह से आप उसको मार्केट करने वाले हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपने पैसा लिया है तो उसको रिटर्न भी करना है। अगर आपका वो शेयर होल्डर है तो उसको शेयर्स भी देने हैं, तो उसका प्लानिंग कैसे रहेगा। ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट प्लान, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ है, जो भी आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, फिर उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से लेकर तो सारा चीज़ें उसमें आता है। तो वो पूरा का पूरा आपको ऑन पेपर लिखना पड़ता है कि आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना पैसा आता है। जितना पैसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए लग रहा है, इंक्लूडिंग योर रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, सब चीज़ें पकड़ने के बाद उस प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड किया। ये प्रोडक्ट के ऊपर इतना प्रॉफिट मार्जिन आएगा, इसके हिसाब से हमारा इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, इसके हिसाब से अपना ऐसा ऐसा रहेगा। तो उसके बाद प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड किया। तो इसीलिए अगर आप लगता है कि यार इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर निकाल रहा हो तो मार्केट से ज़्यादा मतलब 2 गुना ज़्यादा जा रहा है कॉस्ट, तो उस कंडीशन में फिर आपको क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ानी पड़ेगी। जैसे 100 प्रोडक्ट आपका टारगेट है 1 महीने का और उसका खर्चा लग रहा है 100 रुपये, आप मार्केट में उसको बेच रहे हो 200 रुपये में, लेकिन आपने देखा कि ये 200 रुपये का कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, कोई खरीदेगा। तो आपको हर महीने कम से कम 400 प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, तब जाके उस प्रोडक्ट का जो सेलिंग कॉस्ट रहेगा वो कम हो जाएगा। इसलिए क्वांटिटी मैन्युफैक्चरर के हिसाब से ऐसे ही सोचना है। आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आपको यही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। क्वांटिटी में अगर मैं मैन्युफैक्चर करवाता हूँ तो मुझे रॉ मटेरियल सस्ते में पड़ेगा और इतनी क्वांटिटी में मैं बना सकता हूँ, और उसके बाद ही हम उस मार्केट को उस सेलिंग प्राइस में दे सकते हैं जिसमें हमको भी प्रॉफिट मिलेगा। ये जो मैंने अभी बताया सब डिटेल अब यहाँ पे एक आता है कि बिजनेस में किस तरीके से ऑप्शंस रहते हैं। पहला आता है पार्टनरशिप, मतलब अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी है तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। एक आती है पार्टनरशिप, इसमें आते हैं आपके साथ में
एक से ज़्यादा लोग जो रहते हैं वो मिलके एक फॉर्म चालू करते हैं जिसको हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है वो होती है पब्लिक सेक्टर में काम करना है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना है, या फिर कोई ऐसे सेक्टर में डिफेंस में भी हो सकता है। तो वो सारा का सारा उसमें हमें गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नागपुर में ओपन की तो आप एलिजिबल हो, उसके ब्रांच ऑफिसेस अलग अलग सिटीज़ में खुलते हैं। आप लिमिटेड नहीं रहते हो, मतलब आप क्या बोलते हैं उसको, यू आर अनलिमिटेड टू ऑल दीज ब्रांचेस। आपको सिर्फ 5 जाके चालू करना है, आप अपना बोर्ड लगा के वहाँ पे कहीं पे भी आप शुरू कर सकते हो। एक ये पार्ट होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है इनिशियली एज पर गवर्नमेंट रूल वो 1 लाख होता है। मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है तो मैक्सिमम जितना भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। बिजनेस जो रहता है, जब आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हो तो उसमें आपका गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से जीएसटी लेना ज़रूरी है अभी फिलहाल, अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो या सर्विस देते हो व्हाट्सएवर। लेकिन जीएसटी के लिए भी ऐसा होता है कि जब तक आपके बिजनेस का टर्नओवर अबाउट 20 लाख नहीं होता है तब तक आप नहीं जीएसटी लिया तो भी चलता है। मतलब यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टेकिंग अ जीएसटी, बट यू हैव टू टेक अ जीएसटी इफ यू आर गोइंग टू टेक अ फ्रेंचाइजी ऑफ अनदर प्रोडक्ट, बिकॉज यू हैव टू पे जीएसटी। दैट्स दैट। देन इसमें एक दिक्कत ये आता है कि आप अगर पार्टनरशिप में हैं, अगर कुछ इश्यूज होते हैं, पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है तो बिजनेस पूरी तरीके से लॉस हो जाता है। लॉस इसलिए होता है या तो पूरा का पूरा बिजनेस आपको किसी और को हैंड ओवर करना होता है, या तो फिर किसी एक के नाम से अगर जा रहा है तो जो 50% शेयर होल्डर होता है उसको वो 50% पे करना होता है। सो ये थोड़ा एक रिस्क फैक्टर होता है इसमें बिजनेस पार्टनरशिप में। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हो तो यू मस्ट हैव द गुड टर्म्स एंड कंडीशन विथ योर पार्टनर, देन ओनली यू कैन हैव बिजनेस। मतलब एक ही डोमेन में अगर दोनों लोग काम कर रहे हैं तो फिर झगड़े होते हैं, मैं इतना काम कर रहा हूँ यार, तू इतना पैसा ले रहा, तो कुछ काम भी नहीं करता, ऐसा मैक्सिमम होता है। हम लोग देखते हैं, अगर आपने देखा होगा मिनी प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट में आप ग्रुप में काम करते हो तो एक ही बंदा काम करता है, 2 लोग बैठे रहते हैं व्हाट्सएप। फिर आप जाते हो टीचर के पास और मैं कर रहा हूँ पूरा, ये तो करते ही देखो उसकी भी तो अच्छा मार्क किया है ना। तो अलग अलग फील्ड्स रहती है। जैसे मान लीजिए अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि चारों के चारों जो ग्रुप मेंबर है वो एक ही फील्ड में परफेक्ट हो सकता है किसी को प्रोग्रामिंग अच्छे से आती हो सकता है कोई हार्डवेयर में अच्छा होगा, हो सकता है कोई प्रेजेंटेशन में अच्छा होगा, कोई सब बाकी और भी फील्ड्स होती है। तो आपको डिवाइड करना होगा। मतलब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कर लो हम लोग बाद में आ गए, आप मेरे को समझा देंगे, डिवाइड करना होता है सारी। कोई एक पेपर रिसर्च पेपर का कोई काम करेगा, तो इस तरह से आपको पूरा एक टीम मैनेज करना है। मतलब आप जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू आर गोइंग टू हैंडल अ टीम। वन विल बी द टीम लीडर और एवरीवन विल बी द टीम लीडर और एवरीवन नोज दैट व्हाट एग्जैक्टली द रोल टू डेवलप दैट प्रोडक्ट। और जो भी आप प्रोजेक्ट डिजाइन करते हो डोंट थिंक अबाउट ओनली यू टू गेट द मार्क्स 200 मार्क्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। यार ये प्रोडक्ट हम लोग बेच सकते हैं क्या मार्केट में, अगर आपने ऐसा कुछ डिज़ाइन किया तो। लिमिटेड पार्टनरशिप ये भी सेम उसी तरीके से है। और हाँ, अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि आप ओपीसी कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज 1% कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पहले रूल था कि मिनिमम 2 पार्टनर होने जरूरी है, मैक्सिमम कितने भी रहे, मिनिमम 2 पार्टनर होना जरूरी है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने रूल निकाला हुआ है कि अगर सिंगल बंदा कंपनी चालू करना चाहता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सो इट इज कॉल्ड ओपीसी 1% कंपनी। दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल दैट यू कैन स्टार्ट योर ओन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपीसी कंपनी विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट नॉर्म्स। कॉर्पोरेशन एक आता है, इनकॉर्पोरेशन जिसको हम बोलते हैं, तो ये एक अलग से सर्टिफिकेशन होता है गवर्नमेंट का, जिसके आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके भी इसको आप इजीली कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं होता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए आपको ऑडिटर रखना ज़रूरी होता है, सीए रखना ज़रूरी होता है, उनके थ्रू होता होगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट कॉर्पोरेशन करना है, प्रोप्राइटरशिप करना है, तो आप भी खुद गवर्नमेंट के पोर्टल पे लॉगिन करके कुछ 30 या 40 रुपये लगते हैं, आप अपना एक गुमास्ता निकाल सकते हो। गुमास्ता पता है? गुमास्ता आप अपना निकाल सकते हो। अदरवाइज देयर आर एजेंट्स ऑल्सो अवेलेबल हु आर चार्जिंग 5000 रुपीज़ फॉर दैट 30 रुपीज़। सो बिजनेस अच्छा है, वो भी चालू कर सकते हो आप, अगर आपको पता है किस तरह से करना है। अब आपको लगता है पैसा, तो पैसा कहाँ से है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होता है ना, बिजनेस में पैसा चाहिए। या तो आपके पास सेविंग होगा, या तो फिर आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से लो,
इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपने एक कंपनी का नाम सुना है, ग्रे ऑरेंज रोबोटिक्स? ग्रे ऑरेंज रोबोटिक्स एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। अभी वो कंपनी सिंगापुर में है और वो एक स्टार्टअप है। बीटेक स्टूडेंट्स लोगों ने, मैकेनिकल स्टूडेंट्स लोगों ने उसको स्टार्ट किया था। ईयर में भूल गया कब किया था, मैंने शायद 2010 या 11 में किया था। तो उनका एक प्लान था कि एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जाए कि जो पार्सल होता है ना, जो कुरियर आता है अपने यहाँ पे, वो सॉर्टिंग का मशीन उन्होंने डिज़ाइन किया, जो अभी अमेजोन के पास लगा हुआ, फ्लिपकार्ट के पास लगा हुआ, वो ये कंपनी ने लगाया। उनका सिंपल एक फंडा था कि कुरियर आने के लिए टाइम लगता है 3 से 4 दिन का। पहले हम लोग दे देते थे ना, जब दिल्ली से इधर आना है तो कम से कम 3 से 4 दिन का, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि आज ऑर्डर दे दिया कल मिल जाएगा। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या था कि उनको सॉर्टिंग करने के लिए दिक्कत जाती थी। जो मैन पावर रहता था उनका ह्यूमन एरर, कि प्रोडक्ट अगर मुझे दिल्ली से नागपुर भेजना है तो वो कौन से एरिया से आया, किससे आया, क्योंकि उनके आउटलेट्स रहते हैं ना बहुत सारे। मेन गोडाउन जो रहता है वो अलग रहता है जहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन पूरे सिटी में आउटलेट्स रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि DTDC के आउटलेट्स बहुत जगह लगे हुए हैं, वहाँ पे सारे लोग आते हैं, कस्टमर्स वहाँ पे पार्सल दे देते हैं और वहाँ से फिर एक पर्टिकुलर स्टेशन पे आके फिर वो निकलता है। तो उनका प्रॉब्लम ये था कि जब वो पूरे पार्सल्स आते थे सारे गाड़ियों में पूरे बोरे भर के, उसके बाद उनको दिक्कत आता था कि यार अभी इसको सिटी वाइज अलग कैसे करें। तो उसके लिए उनको बहुत प्रॉब्लम था जो कुरियर कंपनी। तो वो सिर्फ गए वहाँ पे, उन्होंने बोला कि जस्ट गिव अस अ चांस टू गिव यू दिस पर्टिकुलर रोबोट, हम ऑटोमेशन करके देते हैं आपको। तो उन्होंने कहा कि आप बना के दिखाइए, मैं पैसा वैसा नहीं दूँगा, अगर चला तो फिर मैं पैसा लगाऊँगा। और पैसा तो है नहीं, लगाएंगे कहाँ से? तो वही दोस्तों से, रिलेटिव से जितना पैसा आता है लिया, 4 से 5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करके एक छोटा सा रोबोट डिज़ाइन किया उन्होंने। बस उस पर आप पार्सल डालो, वो स्कैन करेगा, अकॉर्डिंग टू द स्कैनिंग एरिया वाइज वो उसको सॉर्टिंग करेगा। तो जो पार्सल जो बंदे वहाँ पे काम करते थे, एक दिन में 100 या 150 पार्सल्स अगर वो सॉर्ट कर रहे हैं, तो वो मशीन पे वो 500 पार्सल पर आवर के हिसाब से सॉर्ट, उस प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो उस कंपनी को फिर बाद में फंडिंग दिया गया और उसके बाद वो कंपनी बनी। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो उन्होंने इंस्टॉल किया था वो Delivery.com कंपनी, आपने सुना होगा Delivery.com, सबसे बड़ी कंपनी है, कुरियर कंपनी। सबसे पहला सॉर्टिंग मशीन इंडिया का वहाँ पे उन्होंने इंस्टॉल किया और उसके बाद उन्होंने वो कंपनी स्टार्ट की ग्रे ऑरेंज रोबोटिक्स, जो अब सिर्फ और सिर्फ पार्सल के कंपनीज के लिए काम करते हैं, मतलब ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स नाम है उसका। आप सर्च कर सकते हैं ग्रे ऑरेंज रोबोटिक्स, आप उनके प्रोडक्ट देखिए, बहुत ज़्यादा गरीब प्रोडक्ट। तो सप्लायर्स आता है, बाद में बैंक, गवर्नमेंट प्रोग्राम में जैसे आपको अभी बताया MSME फंडिंग देता है, वैसे ही MCED करके एक है नागपुर में, MCED आप सर्च करना इसमें। उनके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के, 2-2 दिन के वर्कशॉप होता है या 1 डे वर्कशॉप होता है, आप शायद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो वो जो MCED गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपके पास बिजनेस आइडिया होगी तो वो आपको स्टार्टअप के लिए फंडिंग देने के लिए उनको ऑफिस है सिविल लाइन उद्योग भवन में, आप डायरेक्टली भी जाके वहाँ पर मिल सकते हो। और उसमें सब्सिडी है, मेनली वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए सब्सिडी 35% है, मेल्स के लिए 30% सब्सिडी है। सब्सिडी मतलब आपको अगर 10 लाख रुपए देती है गवर्नमेंट, 3 साल तक के आपका बिजनेस का टर्नओवर देखेगी। अगर आपका 3 साल बिजनेस अच्छे से चला तो आपको 10 लाख के वापस सिर्फ 7 लाख का, 3 लाख आपको। बिजनेस मैनेजमेंट, ये जब भी मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट एंड फंड मैनेजमेंट, 3 तरीके के मैनेजमेंट आपकी तरफ ध्यान देना होगा। कस्टमर मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आफ्टर सेल सर्विस एंड फीडबैक। आपने ये देखा होगा, किसी के पास 4 व्हीलर होगी, मारुति या टाटा के लोग हमेशा कॉल करते रहते हैं, सर फीडबैक दीजिए, 10 में से रेटिंग दीजिए। और वाई? बिकॉज बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर फीडबैक दे वांट टू सेटल एंड दे वांट टू बहुत ज़्यादा और अच्छे तरीके से उनका सर्विस डेवलप करना चाहते हैं। तो ये आता है कॉम्पिटिशन बेस में। वैसे आप अगर प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो तो आपको भी आफ्टर सेल सर्विस और फीडबैक लेना जरूरी है, ताकि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो उसको मॉडिफाई आप कर सकते हैं। फंड मैनेजमेंट, ये तो पता ही है, इन्वेस्टर्स है, स्टेक होल्डर्स है, उसमें पैसा कैसे मैनेज किया जाए। अब किस एरिया में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, मैंने थोड़ा एग्जांपल में दिया हुआ है। जैसे आप सोलार में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ये सोलार पावर बहुत ज़्यादा भी चल रहा है। देन लाइट्स, जिसमें आपका LED लाइट्स का सबसे ज़्यादा मार्केट है इंडिया में या अब्रॉड भी। ऑटोमेशन में आपके IoT आता है, जिसमें आप होम ऑटोमेशन, स्विचेस ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आता है इंडस्ट्रियल IoT, जिसमें जैसे कोई फूड फैक्ट्री है, जैसे हमारे कस्टमर है, उनका फूड फैक्ट्री है, कोल्ड स्टोरेज है उनका, पतंजलि,
वहाँ पे जो फ्रोज़न फूड्स होते हैं ना, फूड्स को पहले उसको फ्रोज़न करते हैं और उसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं। उनका प्रॉब्लम ये आता है उनको कि वहाँ पे टाइमर बेस्ड सिस्टम होता है, जो चेंबर होता है उनका कूलिंग चेंबर, वो टाइमर बेस्ड है। आप सिर्फ उसमें ऑन टाइम करके रखो, बराबर 15 मिनट के बाद वो ऑफ हो जाता है, -20 डिग्री के ऊपर में सेट रहता है। तो अब उसको मॉनिटर करना है ऑनलाइन कि अभी फिलहाल टेम्परेचर क्या है, सिस्टम बराबर ऑन है या ऑफ है, गैस बराबर तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सारा सिस्टम जो होता है वो अमोनिया बेस्ड होता है। पहले अमोनिया डालते हैं फूड प्रोडक्ट के ऊपर में, फिर जाता है फिर वो चेंबर में जहाँ पे उसका पैकेजिंग होता है, फिर ड्राई चेंबर में जाता है जहाँ से वो -20 डिग्री पे फ्रोजन किया है, एंड देन आफ्टर दैट इट एक्सपोर्ट। उसके बाद आता है रोबोटिक टॉयज। जैसे आपको पता है टॉयज इंडस्ट्रीज का बहुत ज़्यादा अभी बीच में हुआ था, PM सर ने भी बोला था कि आप टॉयज इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो, बिकॉज जितनी भी टॉयज हम देखते हैं सारे चाइना से इम्पोर्ट हो रहे हैं। छोटी छोटी 10-10 रुपये की गाड़ी अभी चाइना से इम्पोर्ट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्यों नहीं मैन्युफैक्चर करते। तो इसके लिए टॉयज इंडस्ट्री के लिए MP गवर्नमेंट के थ्रू एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया कि जहाँ पे सिंपली उन्होंने ये बोला कि हम आपको पैसे से लेके जगह से लेके सारी चीज़ें देते, बस यहाँ आके आप अपना सेटअप करें। तो टॉयज इंडस्ट्रीज़ में आप उतर सकते हो, जिसमें लेटेस्टली जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन वाली जो टॉयज होती है, RC कार्स होती है, या फिर और बहुत सारे एजुकेशनल टॉयज भी आती है बहुत सारी। आप देखोगे सारे मेड इन चाइना हैं, सारे के सारे। कोई भी इंडिया में ऐसा नहीं प्रोडक्ट मुझे दिखा आज तक कि मैंने बहुत सर्वे भी किया इस बारे में, ऑनलाइन भी देखा ऑफलाइन भी देखा, इंडिया में नहीं बनाता है। जब आप इसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी चल ही रहा है, पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करो, ये बिजनेस है। या तो फिर सीधा सीधा फ्रेंचाइजी ले लो किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल वालों की। आपने देखा भी होगा बहुत सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की फ्रेंचाइजी लेके रखे हुए हैं, लेकिन उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, क्योंकि खरीदार नहीं मिल रहे। खरीदार क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भरोसा नहीं है, चार्जिंग खत्म हो गया बीच में, तो मैं कहाँ से चार्ज करूँगा? रिलायबिलिटी नहीं, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन नहीं है ना पास में, और ऊपर से चार्जिंग करने के लिए भी 1 घंटा 1.5 घंटा कौन लाइन में लगा जाएगा, मतलब आप लगा दो। तो उसके ऊपर तो रिसर्च करो आप। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप कैसे कर सकते हो? आप हाइब्रिड व्हीकल बनाओ। हाइब्रिड व्हीकल भी अवेलेबल है मार्केट में, पता है आपको? मतलब आप अपने व्हीकल को, आपके पास मान लीजिए कोई पल्सर या 2 व्हीलर है, स्प्लेंडर वगैरह, आप उसको हाइब्रिड में कन्वर्ट कर सकते हो। उसकी किट मिलती है, वो आप अकेले ही कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं। पूरे वायरिंग कनेक्शन वगैरह सब उसके साथ आते हैं। आपको चक्का निकाल के वो चक्का लगाना है, बैटरी का बैंक लगाना है, बस हो गया। एक्टिवा है आपके पास या कोई दूसरी मोपेड है, उसको भी आप हाइब्रिड में कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको जो रेयर व्हील होता है उसको चेंज करना है जी इलेक्ट्रिक में। सो ये हो जाता है हाइब्रिड। दैट मीन्स 40 किलोमीटर अगर इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है तो एटलीस्ट 1 लीटर पेट्रोल भी होगा, तो उसमें से और 40 किलोमीटर चलेगा। वो 40 किलोमीटर जब चलेगा उतने देर में बैटरी चार्ज है। ये सिस्टम अवेलेबल है, लेकिन अगर उस पर अभी तक ये मार्केट में इसलिए नहीं आया है कि उसके ऊपर काम करने के लिए लोग नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, सर्विस स्टेशन नहीं है। तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं। देन आता है आपका ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में जैसे कोई पार्ट्स ले रहे हो आप और उसको बेच रहे हो, चिल्लर पार्ट्स, जैसे आप ICs पकड़ के चलिए 7805। अब 7805 IC है, मार्केट में बेचना है। आप बल्क क्वांटिटी में 1 लाख 2 लाख क्वांटिटीज़ में लोगे तो आपको 1 रुपये 2 रुपये में वो IC पड़ेगी, और यहाँ मार्केट में आप उसको 5 रुपये में डीलर को दे सकता है और डीलर को 10 रुपये में बेचता है। PCB मैन्युफैक्चरिंग, इसमें आपको PCB डिज़ाइन कैसे करते हैं, फैब्रिकेट कैसे करते हैं, इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। जिसमें एक सॉफ्टवेयर्स आते हैं बहुत सारे, पहले उसका सॉफ्टवेयर से पूरा एनालिसिस होता है आपका, सिंगल लेयर PCB या डबल लेयर PCB आप डिज़ाइन कर सकते हो स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू। स्कीमेटिक डायग्राम आपको कस्टमर प्रोवाइड करेंगे, उसका आपको PCB में कन्वर्ट करना होता है, फिर नंबर ऑफ क्वान्टिटीज़ में फैब्रिकेट करके देना। या तो कस्टमर आपको बोल रहा है कि भाई मेरे पास में कुछ नहीं है, स्कीमेटिक नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास एक प्रॉब्लम डेफिनेशन है, ये ऐसा ऐसा है, आप ही सर्किट बनाओ, आप ही मेरे को बना दो। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है हमारे, उनको रिक्वायरमेंट है 48 वोल्ट DC है इनपुट, एंड दे रिक्वायर 12 वोल्ट 2 एम्पियर के 2 आउटपुट चाहिए। सिंगल आउटपुट का मार्केट में अवेलेबल है DC to DC कन्वर्टर, लेकिन डुअल आउटपुट का नहीं, उनको डुअल आउटपुट का चाहिए। तो फिर सर्किट भी हमें ही बनाना, फिर उसका सिमुलेशन होगा, फिर उसका फैब्रिकेशन होगा, आफ्टर दैट वी प्रोवाइड देम द कोटेशन। देन सर्विस प्रोवाइडर, डीलरशिप लीजिए या तो फ्रेंचाइजी लीजिए किसी भी कंपनी का, वो आप कर सकते हैं। ओके, ये थोड़ा सा इलॉबरेट किया है। अब सोलार में आपका आता है इसमें आता है आपका सोलार स्ट्रीट लाइट्स, सोलार DC लाइट्स। अगर आप
विलेजेस में बिजनेस करना चाहते हैं तो मैक्सिमम सोलर डीसी लाइट्स का बिजनेस सबसे ज़्यादा है। देन सर्विस प्रोवाइड में आप कर सकते हैं इसमें ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड सिस्टम्स। ऑन ग्रिड मतलब वो जो सोलर लगा के उसका, जैसे आपके कॉलेज में भी लगा है सोलर पैनल्स, ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। वैसे ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है इसमें ग्रिड से कनेक्टिविटी नहीं होती है। उसके बाद बाकी सारे जो सोलर से रिलेटेड अभी चल रहा है, अभी फिलहाल एक रिसर्च भी चल रहा है जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन है, उसको सोलर में करना है, वो नहीं बनाने का, वो चल रहा है उसका काम। कार्स को भी सोलर में कन्वर्ट कर, कार्स फोर व्हीलर में हाँ चल रहा है ना, तो रूफ के ऊपर में पूरे सोलर पैनल लगा के ऑटोमेशन इंडस्ट्री में आप कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका वाटर प्यूरिफायर। ये एक प्रॉब्लम डेफिनेशन बहुत सारी जगह पे है, रूरल एरियाज में है, इवन सिटीज़ में भी ऐसी बहुत सारी जगह पे है जहाँ पे नल का लाइन पानी आता है लेकिन वो प्यूरिफाई नहीं होता है, इसलिए हम लोग वाटर प्यूरिफायर यूज़ करते हैं। फूड फैक्ट्री, जहाँ पे एग्जाम्पल है मेटल डिटेक्टर इन फूड्स, ये बहुत सारी कंपनीज में नहीं होता है पर दैट इज मैंडेटरी टू डिटेक्ट द मेटल इनसाइड द फूड। पीसीबी सोल्डरिंग स्टेशन, देन वायरलेस स्विचेस। सर्विस प्रोवाइडर में आप जा सकते हैं ऑटोमेशन में, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम्स, जैसे पीएलसी आता है, पीएलसी ज़्यादा पता है आपको। पीएलसी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो उनके जितने भी ऑटोमेशन होते हैं, कन्वेयर बेल्ट्स है, पिक एंड प्लेस है, रोबोट्स होता है, ये सारा का सारा पीएलसी से ऑपरेट होता है, तो उसमें भी आप सर्विस प्रोवाइडर या इंस्टॉलर करके जा सकते हो। टॉयज मैन्युफैक्चरिंग में आप जा सकते हो, व्हीकल जो या देख रहे हैं, एक छोटा सा प्रोटोटाइप हमने डिज़ाइन किया था, ये ब्लूटूथ ऑपरेटेड व्हीकल है और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। हमने इसको 2015 में डिज़ाइन किया था और उस वक्त हमने इसको बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया था, फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को। ये इसको असेंबल कैसे करना, प्रोग्राम कैसे करना, रन कैसे करना। ये 3-in-1 रोबोट है, इसमें आपका ऑब्स्टेकल अवॉइडर, लाइन फॉलोवर, ब्लूटूथ से भी ऑपरेट होता है, ये इस तरह से काम है। ये सीरीज है जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग में देख सकते हो, तो ये डुअल लेयर है, ये सिंगल लेयर पीसीबी है। ये वाली जो पीसीबी आप नीचे वाली देख रहे हैं, ये हमने बनाई थी सैनिटाइजर मशीन्स के लिए। जिस वक्त कोविड का सिचुएशन था उस वक्त हमारे पास में 15 डेज़ का ही समय था, जस्ट हमारे पास ऑर्डर आ गया था कि हमें एक मशीन बना के चाहिए, क्योंकि मार्केट में सैनिटाइजर मशीन अवेलेबल थी लेकिन वो कंट्रोलर बेस नहीं थी, वो सिंपल थी कि जितना देर तक आप उसके नीचे हाथ रखो उतना देर तक चलेगा, टाइमर वगैरह कुछ भी नहीं है। फिर उसमें और ज़्यादा एडवांसमेंट आया, बाकी सारी चीज़ें आई, तो उस वक्त हमने एक सीरीज़ बना के, प्रोटोटाइप बना के नागपुर में ऑलमोस्ट वी सोल्ड अराउंड 4000 पीसीबीज टू डीलर्स। फिर उन्होंने अपने अपने मशीन में उसको इंस्टॉल करके यूज़ किया। स्टार्टिंग में हमने आईआर सेंसर से यूज़ किया था, उसके बाद हमने अल्ट्रासोनिक में शिफ्ट किया। सो अपडेट्स होते रहते कस्टमर का, जैसे फीडबैक हमने कहा था आपको कि फीडबैक लेना ज़रूरी है। तो जैसे आईआर का हमने बना के दिया था तो उसमें दिक्कत ये था, वो सनलाइट में काम नहीं करता था। एक तो इंडस्ट्रियल आईआर सेंसर लगाना पड़ता था जो कि बहुत कॉस्टली था, हमें कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ बनानी थी तो सिंपल आईआर सेंसर से बनता था। तो फिर बाद में हमने उसको शिफ्ट कर दिया अल्ट्रासोनिक, तो उसको एक ही सीरीज बनाई थी। दैन इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप रॉ मटेरियल परचेस कर सकते हो मार्केट से, आप अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल खुद डिज़ाइन कर सकते हो। इवन आपके पास में साइकिल है, 2 व्हीलर है, आपको यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपको देख के आप अपना खुद का प्रोडक्ट पे डिज़ाइन कर सकते हो। तो कितना कमाएंगे हम लोग, छोटा सा एक एग्जाम्पल है, कितना कमाएंगे। एक्सपेक्टेशन क्या होता है हमारा, जैसे हमको 10 लाख का पैकेज चाहिए या 5 लाख का पैकेज चाहिए, मिनिमम से मिनिमम अगर देखते हैं कि चलो यार नहीं तो 3 लाख का तो मिल जाए, खुश है या इतना 4 साल इंजीनियरिंग इतना पैसा डाल दिया, घर वालों की एक्सपेक्टेशन है नहीं होना 10 लाख, 3 लाख तो मिले। तो एक छोटा एग्जाम्पल है जस्ट हाउ टू कैलकुलेट थिंग्स। तो अगर मान लीजिए आपको 50,000 रुपये महीना चाहिए, सिंपल में। अगर आप एलईडी ट्यूबलाइट्स का अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ट्यूबलाइट्स जो आते हैं एलईडी ट्यूबलाइट्स, एक एग्जाम्पल है, रॉ मटेरियल 200 रुपये का आता है, आप 400 रुपये में उसको बेच सकते हो, उसमें भी आप 3 साल की वारंटी आपको लेना है, ठीक है। तो यही चल रहा है मार्केट में, 400 वाला जो ट्यूबलाइट रहता है उसका 3 साल का वारंटी आता है। तो आपका एक्सपेक्टेड इनकम है 50,000 पर मंथ, तो आपको कितना बेचना पड़ेगा, 250 क्वान्टिटी। तो उसके बाद में आपका इन्वेस्टमेंट पर मंथ है 50,000 रुपये और प्रॉफिट आ जाएगा आपका 50,000, मतलब आपको 400 रुपये की 250 क्वान्टिटी आपने बेचा, 400 रुपये में 1 लाख रुपये मिला आपको। और ये आपका टारगेट क्या हो गया फिर 250 क्वान्टिटी पर मंथ। अब 250 क्वान्टिटी ट्यूबलाइट आपको हर महीने बेचनी है, तब जाके 50,000 रुपये महीना आप कमाओ प्रॉफिट, दैट विल बी योर प्रॉफिट।
250,000 पर मंथ, अराउंड 6 लाख पैकेट होगा, अप्रॉक्स 6 लाख। तो अब ये 250 क्वांटिटी जो है ये आप हर महीने कैसे बेचोगे, इसकी स्ट्रैटेजी आपको डेवलप करनी है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आएगी आपको, ये रॉ मटेरियल आप जहाँ से ले रहे हो वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट, जैसे एग्जांपल में मैंने 200 रुपये लिखा हुआ है, तो ये 200 रुपये इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इंक्लूडिंग टैक्सेस होना चाहिए, या इससे भी कम में अगर मिल रहा होगा तो वो भी चलेगा। नेक्स्ट, आप इसको 400 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप इसको किसी डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर को दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको उसके ऊपर 50% प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता है, आपका मार्जिन कम होगा। अब वो प्लान आपको करना पड़ेगा कि आपको कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये चीज़ बेचनी पड़ेगी। अगर छोटे छोटे गांव भी आपने कवर कर लिए, छोटे छोटे गांव भी कवर कर लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट बनी हुई है, 100 गांव आपके पास में है, 100 विलेजेस, 100 विलेजेस में एक एक कोई भी एक इलेक्ट्रिकल का दुकान या किराना का दुकान भी अगर आपने पकड़ लिया, वहाँ तो रहता ही है ना, किराना शॉप तो रहता ही है। एक लाइट भी अगर उसको दे दिया आपने तो 100 लाइट तो वैसे ही पर डे जा रहे हैं आप, तो मैक्सिमम लाइट तो जाने ही है वहाँ पर, ठीक है। और इसमें और एक खासियत है, 3 साल का आप वारंटी ले रहे हैं, इसमें अगर लाइट एक बार खराब हो जाता है तो एक बार रिप्लेसमेंट डायरेक्टली मिलता है, लेकिन अगर दूसरी बार खराब होता है तो रिपेयरिंग चार्जेस। 3 साल का वारंटी का मतलब ऐसा नहीं कि 3 साल में 10 बार भी खराब हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। ये एक रूल्स अलग अलग रहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होता है ना, वारंटी अंडर टर्म्स एंड कंडीशंस। एक बार खराब हो गया तो रिप्लेस, दूसरी बार खराब हो गया तो रिपेयरिंग चार्जेस, तीसरी बार कस्टमर आता है वो नया लाइट खरीदे। तो प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो प्रोडक्ट इस तरह से बनाना है आपको कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चले, उसके ऊपर नहीं चलना चाहिए। अगर आपने नोकिया बना लिया तो आपका सेल नहीं होने वाला। आपको एंड्रॉइड बनाना है जो हर साल अपडेट मारे और स्लो हो जाए, फेंक कर नया खरीदे, राइट। बिजनेस स्ट्रेटेजी आपको ये बनानी है, आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो मार्केट में वो 2 साल से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, उसके ऊपर वो तो मेंटेनेंस का कॉस्ट निकाले या तो फिर नया खरीदे, राइट। तो अब आपका आता है मेक योर आइडिया इनटू रियलिटी, ठीक है। अब अगर आपके पास में कोई आइडिया है, अगर आपको लगता है उसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट करना है, तो वो आइडिया इन द सेंस ऑफ आइदर इट इज सॉफ्टवेयर, आइदर इट इज हार्डवेयर, आइदर इट इज सर्विस प्रोवाइडर, ये आप डिसाइड करोगे। बिजनेस प्लान डिसाइड करके कस्टमर आपका टारगेट कौन सा रहेगा, प्रोडक्ट आप कितने में बेचने वाले हो, क्या प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलेगा, कितना आप कमाना चाहते हो एक साल में, क्योंकि बिजनेस में महीने का टारगेट नहीं होता है, ईयरली टारगेट होता है। जैसे मैंने कहा सीजनल होता है, ऑफ सीजन रहते हैं, हर एक बिजनेस में 3 से 4 महीने ऐसे आते हैं जिसमें आपको 0 इनकम है, लेकिन आपको ऐसा टारगेट डिजाइन करके रखना है कि एटलीस्ट जो बाकी के महीने बचे हुए हैं उसमें मेरा वो उतना प्रॉफिट मार्जिन निकले कि मैं 4 से 5 महीना सर्वाइव कर सकता हूँ विद माई एम्प्लॉइज, ठीक है। तो जो भी आप फाइनल ईयर में हो, जो आप प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो, थिंक अबाउट द प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, क्या वो स्केलेबल है, या इंडस्ट्री के साथ आप टाइप करके कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, दैट यू गेट एन एक्सपोजर टू वर्क विद द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, बिकॉज दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड हाउ टू एग्जीक्यूट दैट, तो उसमें आता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेने के बाद से लेके तो कस्टमर तक वो चीज़ पहुंचने तक क्या प्रोसेस होता है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको सीखने को मिलती है कि डिज़ाइनिंग प्लानिंग कैसे किया जाता है प्रोजेक्ट का, फिर उसके लिए रॉ मटेरियल्स कैसे लिया जाता है, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आता है, फिर उसका प्रोग्रामिंग प्रोसेस आता है, फिर उसका टेस्टिंग आता है, फिर ट्रबल शूटिंग आता है, उसके बाद में फिर चेंजेस होकर आगे बढ़ता है। तो ये सारी एक फ्लो में रहता है, लेकिन ये फ्लो आपको एक विदिन टाइमलाइन करना है, तो वो टाइमलाइन भी आपको पूरा एक पहले ही प्रिडिक्ट करके रखना पड़ता है। आज मेरे पास 1 तारीख को मेरे पास एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट आया, तो मुझे बराबर 30 तारीख तक वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास देना ही है। अगर आपने उसके लिए एक टीम रखी हुई है, अगर वो टीम नहीं काम कर रही है तो आपको उस टीम को निकाल के दूसरी टीम को प्रोजेक्ट देना पड़ता है, और यही कंपनी में होता है। इसलिए अभी आप अगर मान लीजिए आगे जगह जॉब भी कर रहे हो, आपको जो प्रोजेक्ट मिलता है तो टाइमलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो टाइमलाइन बोला गया वही करो, क्योंकि हम लोग इंजीनियर हैं, हमको पता है एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ेंगे इतना भी हम बोलेंगे। प्रोजेक्ट सबमिशन है या प्रोजेक्ट का आपको 50% दिखाना है, नहीं हम 70% होगा तभी से दिखाएंगे। तो टाइमलाइन अभी से सीख लो, उसका टाइम मैनेजमेंट करना भी आप अभी से सीख सकते हो।
So what our company provides, so if you require any kind of a help regarding your entrepreneurship startup business, so कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके तो प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरह से लाना है, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी हेल्प लगती है तो हमारी कंपनी के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके पास आइडियाज़ है, अगर आपको लगता है कि आपके पास में वो आइडियाज़ को आप प्रोडक्ट में डेवलप करना चाहते हो तो वी ऑल्सो सपोर्ट फॉर दैट। एंड बेसिकली वी प्रोवाइड्स training in the part of all both things. If you want to manufacture a product, for that we provide a training, or if you want to go for some job related in the field of a technical field, core field, because we do have only the core field. One is the telecommunication. टेलीकम्युनिकेशन में हमारे जो प्रोडक्ट है वो कॉल सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं। कॉल सेक्टर के जो सर्वर्स होते हैं जिसको हम VoIP सर्वर बोलते हैं, वॉइस ओवर IP, जिसमें इंटरेक्ट वॉइस रिस्पॉन्स भी आता है। IVR आपने सुना है, व्हाट इज IVR? कॉल करने के बाद जो एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज आता है ना, वेलकम टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, प्रेस 1, प्रेस 2, तो वो जो प्रोग्रामिंग होता है वो एक सर्वर होता है, वो सर्वर हम डिज़ाइन करते हैं। फिर 1 दबाया तो इसको कॉल लगेगा, 2 दबाया तो उसको कॉल लगेगा, उसके हिसाब से। सो दैट इज अवर कम अंडर द टेलीकम्युनिकेशन। तो उसमें 2 जॉब रोल्स आते हैं, एक सर्विस इंजीनियर आता है और एक प्रोग्रामर आता है। दूसरा आता है हमारे पास में एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड सिस्टम में भी 2 चीज़ें आती है, एम्बेडेड हार्डवेयर इंजीनियर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एम्बेडेड हार्डवेयर इंजीनियर में आता है एम्बेडेड टेस्ट इंजीनियर, जिसमें एक पर्टिकुलर हार्डवेयर का आपको सर्किट दिया जाता है, आपको उसको ट्रेस करके उसका पूरा सर्किट डिज़ाइन करना होता है और सिमिलर सर्किट एज ए प्रोटोटाइप करके उसको मैन्युफैक्चर भी करना होता है इन द सॉफ्टवेयर में आपको सिमुलेशन भी करना होता है। देन आता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसमें आपको एक पता रहता है इनपुट क्या आने वाला है, आउटपुट क्या नहीं है, उसका पूरा एल्गोरिथम आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। दैट वी प्रोवाइड एन आर्म कॉर्टेक्स के बोर्ड पे हम सिखाते हैं उसमें पूरा, और ESP32 दैट इज यूज फॉर योर IT। And these 2 particular fields that we have customers and they require engineers in the field of telematics. So what is telematics? What exactly the role of telematics engineer? You can study very well. So this is very vast field and there is a lot of requirement for these fields also if you are going for a job. If you are going for a business, then just think about the point that what exactly the service you have to provide, what exactly the product you are going to manufacture, and what will be the service of that product. So thank you very much. I hope the presentation. Thank you, sir. I always remember sir is very dedicated for the student to make a incubation center in the institute. Is it, sir? Yeah. So the student, those who are interested to develop a product in our institute, where we are working for the incubation center, that student can take the training and you can develop a product and sir will assist you for the selling. So always we used to do like that, is it? We have taken the help of LED tube light training from the VS Infotechs, and our student and faculty, some of the faculty from electronics and telecommunication, we have fabricated, is it? And up to 100 LEDs, and we have told the student to sell that LEDs. So in such manner also the student can generate the revenue, you can generate the money in institute also. So in such manner you can take the help from the Sandeep Sonaskar sir, and I know Sandeep sir will definitely help you students. In fact, students, those who want to do the project, that is a live project or sponsorship project, you can go there. Sir is having many of the problem statement that is related with the companies. That project he can able to give you, and you can design that project, means the product, for the industry also. So in such manner the VS Infotechs can help you. So you can take assist from sir in this manner. Okay? Thank you, sir.
present here. I, Shruti Ramatedi, take this opportunity to deliver a vote of thanks to everyone who has assembled here and have raised and praised the glory of Sanjana on prototype validation, converting prototype to startup. Organized by Electronics and Telecommunication Department in association with Institute's Innovation Council. I express my deep sense of gratitude to Mr. Sandeep Sonaskar sir and request Heather ma'am to present sir with a token of appreciation. I would like to thank Sir for enlightening us with his gracious presence and value of words and knowledge of wisdom. Thank you, Sir, for giving us your precious time. And lastly, a heartfelt thanks to all the audience for patience listening. Thank you all. Feedback link. Please respond to that feedback link just now. Okay?